بات کریں گے مہنگائی کی۔ ناصر، مہنگائی کا گراف بلندیوں کو چھونے لگا ہے۔ دالیں، چاول، گھی اور خوردنی تیل کے دام مسلسل بے لگام ہیں۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ دال چنا، دال ماش، بیسن، کالے چنے اور سفید چنے سب قوت خرید سے باہر ہو چکے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر جو ہیں وہ غلہ منڈی اور پرچون بازاروں میں کیا بھاؤ تاؤ ہیں، سپلائی چین کی کیا صورتحال ہے، بتائیے گا۔ آج بالکل مہنگائی کے حوالے سے آج بات کی جائے تو جو سرکاری ریٹ لسٹیں جاری کی گئی ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے، اس میں 11 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جس میں پیاز، ٹماٹر اور ادرک کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اور دیگر موسمی سبزیاں جو ہیں وہ بھی مہنگی کر دی گئی ہیں۔ 4 پھل جو ہیں آج مہنگے کیے گئے ہیں، جبکہ برائلر کی قیمت میں بھی ایک بار پھر اضافہ کیا گیا، 7 روپے مہنگا کر کے 639 روپے یعنی کہ 650 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچا دیا گیا۔ اسی طرح انڈوں کی قیمتوں میں دوسرے روز بھی اضافہ کیا گیا اور 236 سے قیمت بڑھا کر 237 روپے فی درجن کی گئی ہے۔ دالوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مارکیٹ میں اس وقت جو کالے چنے ہیں وہ 300 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ دال چنا جو ہے 300 روپے فی کلو تک، دال مسور 320 روپے فی کلو تک، دال ماش 490 سے 500 روپے فی کلو تک، اسی طرح سفید چنے جو ہیں وہ 360 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اب مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اشیاء ضروریہ روزمرہ استعمال کی اشیاء جو ہیں وہ عام آدمی کی قوت خرید میں نہیں رہی۔ ہمارے ساتھ ایک ساری موجود ہے جنہوں نے کچھ سبزیاں اور دیگر اشیاء خریدی، ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم 2000 کا سامان لے لیتے تھے، اب یہ 3 ساڑھے 3 ہزار کی سبزیاں آئی ہیں۔ ابھی گھی بھی، آٹا بھی لینا ہے، کافی چیزیں بہت مشکل کر دیا انسان کا جینا انہوں نے۔ آج بالکل آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 3000 روپے میں صرف ضروری سبزیاں خرید سکیں۔ ابھی دالیں، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ خریدنا باقی ہیں، لیکن پیسے جو ہیں وہ نہیں بچے، کیونکہ قوت خرید جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ شہر کی 5 اہم شاہراہیں ٹیپا اور پولیس کی توجہ کی منتظر ہیں۔ 5 شاہراہوں کو ماڈل روڈ بنانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ٹیپا نے نواں مالی سال میں منصوبہ ہی بجٹ میں شامل نہیں کیا۔ مال روڈ، جیل روڈ، علامہ اقبال روڈ، کینال روڈ اور فیروز پور روڈ کو ماڈل سڑکیں ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ چیف انجینئر ٹیپا کا یہ کہنا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے بعد لین، مارکیٹ اور کینٹینز لگائی جائیں گی۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے بتائیں گے زین العابدین۔ جی زین۔ لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک روانی کو یقینی بنانے کے لیے 5 شہر کی اہم شاہراہوں کو پہلے مرحلے میں ماڈل روڈز بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں ٹیپا اور ٹریفک پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر اس امر پر اتفاق کیا گیا تھا کہ ان 5 ماڈل روڈز کو جو قانون کے مطابق ڈھالا جائے گا، یہاں پر غیر قانونی پارکنگ کو ختم کیا جائے گا، اور جو حکومتی سطح پر ان سڑکوں پر لین مارکنگ، کیٹ آئیز اور جو زیبرا کراسنگ کے لیے اس کے علاوہ جو فٹ پاتھ بنانے کا کام ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن ٹریفک پولیس اور ٹیپا انتظامیہ ان 5 ماڈل شاہراہوں کو ابھی تک ماڈل نہیں بنا سکی، اور مسلسل یہ جو منصوبہ ہے یہ التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ ٹیپا اور ٹریفک پولیس کی جانب سے اس امر پر اتفاق کیا گیا تھا کہ مال روڈ، جیل روڈ، کینال روڈ، فیروز پور روڈ اور علامہ اقبال روڈ، یہ 5 شاہراہیں ہیں جن کو ماڈل شاہراہیں بنایا جائے گا، اور پہلے مرحلے میں یہاں سے غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ لیکن ٹیپا انتظامیہ کی جانب سے ان سڑکوں کو ماڈل شاہراہیں بنانے کے لیے بجٹ میں فنڈز ہی نہ رکھے گئے، اور یہاں سے غیر قانونی پارکنگ کا بھی خاتمہ نہ کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ ان 5 سڑکوں پر ابھی تک جو کیٹ آئیز ہیں وہ نہیں لگ سکی، جس کی وجہ سے طویل دورانیہ اور جو دیگر اس کے دورانیے ہیں اس کے حساب سے بھی جو ٹریفک پلان ہے وہ مرتب نہیں ہو سکا۔ چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو غیر قانونی پارکنگ ہے اس کا ان سڑکوں سے خاتمہ کر رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں کیٹ آئیز اور لین مارکنگ کا جو کام ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ بہت شکریہ زین۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا آج سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ ہے۔ عمران خان انتخابی مہم کے حوالے سے اہم خطاب کریں گے۔ عمران خان کا خطاب پنجاب کے مختلف اضلاع میں بڑی سکرینز پر دکھایا جائے گا، اور زمان پا گراؤنڈز میں بھی عمران خان کا خطاب دکھایا جائے گا۔ لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت علی، اہم خطاب عمران خان کرنے جا رہے ہیں، کیا تفصیلات؟ بالکل، عمران خان آج پنجاب میں انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آج پالیسی بیان جاری کریں گے۔ آج شام 6 بجے وہ ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر فواد چودھری کے مطابق عمران خان کی جو تقریر ہے وہ 40 اضلاع میں ویڈیو لنک پر دکھائی جائے گی۔ لاہور میں بھی جو ہے وہ زمان پارک کی بیک سائڈ پہ جو گول گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ میں جو ہے وہ بڑی سکرین لگائی جا رہی ہے، جہاں پر لاہور کے لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں، ان کا خطاب سنیں گے۔ تو بنیادی طور پر پی ٹی آئی پنجاب میں انتخابی مہم
शुरू करने जा रही है, जिसके लिए आज इमरान खान की जानिब से पॉलिसी बयान वीडियो लिंक पर जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी होगा, जिससे इमरान खान बराह रास्त खिताब करना उनका मुतवक्के है। जी सही, बहुत शुक्रिया लियाकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस गवाह साबिक MP अब्दुल रऊफ मुगल का बयान कलमबंद कर लिया गया। एहतसाब अदालत ने दीगर गवाहान को तलब करते हुए समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी है। नमान नूर से मज़ीद तफसीलात लेंगे जो इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। जी नमान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत में आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत हुई, जबकि नैब के 3 गवाह आशियाना इकबाल रेफरेंस के जो 3 मुख्तलिफ गवाह थे वो अदालत में पेश हुए, जिनमें एक गवाह का जो है वो बयान कलमबंद किया जा सका। दीगर गवाहों को अदालत ने आइंदा समाअत पर 11 मार्च को तलब कर लिया है, जबकि इस मुकदमे पर समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। आज जिस गवाह का बयान कलमबंद किया गया उनमें अब्दुल रऊफ मुगल जो कि साबिक MPA थे, उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया। दौरान समाअत गवाह ने अदालत को बताया कि मैं उस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुआ, उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PLDC मुंतखब किया गया, जबकि मैं मुख्तलिफ इजलास जो होते रहे, मीटिंग्स होती रही, उनमें शामिल होता रहा और उसका जो भी वाक़या था उस हवाले से मैंने कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखी। तमाम इजलास कार्रवाई का हिस्सा है, उसके जो तमाम इजलास के कागजात हैं वो भी नैब तफ्तीशी अफसर को फ़राहम किए, और उस वक्त मैंने बाद जब ये स्कैंडल सामने आया तो मैंने इसमें नैब को बतौर गवाह बयान भी दिया था, जबकि इसमें कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखी गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ये जो तफ्तीश है वो नैब के आला अफसरान को जो है वो भेजी जा चुकी है, जबकि ये मंजूरी के बाद चेयरमैन नैब की जानिब से मंजूरी के बाद जब जो ही ये रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम अदालत में पेश कर देंगे, जिस पर अदालत ने उस अबूरी ज़मानत पर समाअत 25 मार्च तक तौसीह कर दी है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड पर करप्शन के इल्ज़ामात सामने आए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड को तलब कर लिया है। डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब को रिकॉर्ड समेत 6 मार्च को तलब किया गया है और 3 रुकनी कमेटी इल्ज़ामात की तहकीकात भी करेगी। आतिफ, चेयरमैन लाहौर बोर्ड पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड के जो सरबराह हैं डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब, इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे और उसकी अब तहकीकात का आगाज़ किया गया है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसके सरबराह जो है स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन होंगे। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड भी जो है वो कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं, और सेक्रेटरी जो है इनकी जानिब से जो लाहौर बोर्ड के सरबराह हैं डॉक्टर मिर्ज़ा हबीब, इनको तलब किया गया है और इनको कहा गया है कि मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ 6 मार्च को कमेटी के सामने पेश हों। तो ये इल्ज़ामात करप्शन और प्रैक्टिसेस के लगे थे, जिसके बाद चेयरमैन लाहौर बोर्ड के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया गया है। 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने 6 मार्च को जो है वो सरबराह को तलब कर लिया और तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड को साथ लाने की हिदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। खबर यह है कि वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबे को धचका लग गया। वासा में पेपरलेस कल्चर के दावे धरे के धरे रह गए हैं। 3 साल बाद भी वासा के मुलाजमीन का डाटाबेस कंप्यूटराइज ना हो सका, जबकि जनवरी 2020 में वासा इंतजामिया ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया था। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के बजाय वासा की वीडियो वॉल ही नाकारा हो गई है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा ज़ैन इस बारे में। वासा इंतजामिया की जानिब से ऐलान करदा 4 साला रोड मैप में वासा का तमाम तर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने और पेपरलेस कल्चर पर अमल दरामद करने का मंसूबा बनाया था। ये रोड मैप में वासा ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ तो करवा दिया, मगर इंतजामिया इस पर अमल करना भूल गई। वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के इस मंसूबे को ये बड़ा धचका लगा है कि 3 साल बाद भी वासा के मुलाजिमीन का डाटाबेस कंप्यूटराइज्ड ना हो सका। माजी में देखा जाए तो जनवरी
2020 में वासा इंतजामिया ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के मौका पर वासा इंतजामिया ने पेपरलेस कल्चर और रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का ऐलान किया। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की बजाय वासा की मौजूदा सूरत हाल में वीडियो वॉल ही नकारा हो चुकी है। वीडियो वॉल नकारा होने से गाड़ियों की सर्वेलेंस का काम रुक चुका है, जबकि HRM इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसी वीडियो वॉल से मुंसलिक था। अब ये वॉल बंद होने की वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बंद होकर रह गया है। वासा हुकाम ने आला अफसरान का दौरा करवा के ये वीडियो वॉल को ही बंद कर दिया। इस तरह इंतजामिया के जो पेपरलेस कल्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे थे वो धरे के धरे रह गए। इसके साथ साथ वीडियो वॉल पर होने वाले लाखों रुपए के जो इखराजात थे वो भी जाया होने का अंदेशा पड़ गया है और वासा इंतजामिया का इस हवाले से कोई खातरखा इकदाम अभी तक सामने नहीं आए। अब इंतजामिया से बात की गई इस हवाले से तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस वीडियो वॉल की मुरम्मत का फैसला किया गया है, जिसकी असर नौ मुरम्मत पर 18,26,000 रुपए लागत आएगी। ताहम वीडियो वॉल की मुरम्मत का काम रवा माह में ही मुकम्मल करके इस सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। निजी कंपनी की जानिब से बुकिंग के बावजूद गाड़ी वक्त पर ना पहुंचाने का मामला है। शहरी तबस्सुम ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 लाख रुपए का हर्जाना दायर कर दिया है। सारिफ अदालत ने कार शोरूम के मैनेजर को 2 हफ्तों में तलब कर लिया है। अबू बकर तारिक हमारे साथ हैं। अबू बकर, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिएगा। आपको इस खबर के हवाले से बताएं कि निजी कंपनी की जानिब से बुकिंग के बावजूद गाड़ी वक्त पर ना पहुंचाने का ये मामला है। शहरी तबस्सुम ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 लाख रुपए का हर्जाना दायर कर दिया है। सारिफ अदालत ने कार शोरूम के मैनेजर को 2 हफ्तों में तलब कर लिया है। शहरी तबस्सुम ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाना दायर किया है। आपको अपडेट करें कि निजी कंपनी की जानिब से बुकिंग के बावजूद गाड़ी वक्त पर ना पहुंचाने का ये मामला सामने आ गया है। शहरी तबस्सुम ने निजी कंपनी के खिलाफ 2 लाख रुपए हर्जाना अदा किया था। सारिफ अदालत ने कार शोरूम के मैनेजर को 2 हफ्तों में तलब कर लिया है। सूबाई दारुल हुकूमत में डिजिटल मरदमशुमारी का चौथा रोज़ है। लाहौर पुलिस की जानिब से टीमों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, जबकि CCPO कहते हैं कि 4000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, शहर में डिजिटल मरदमशुमारी का आज जो है वो चौथा रोज है। डिजिटल मरदमशुमारी पर की टीमों पर डेटा इंटीग्रेटर को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। लाहौर पुलिस का कहना है कि लाहौर पुलिस के 4000 से ज्यादा अफसरान और मरदमशुमारी टीमों की हिफाजत पर तैनात हैं। शहर के 8000 से ज्यादा ब्लॉक्स में 465 डेटा इंटीग्रेटर को सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। जिसको लाहौर बलास अली का कहना है कि हर डेटा इंटीग्रेटर टीम के साथ एक पुलिस एहलकार तैनात किया गया है। लाहौर पुलिस मरदमशुमारी टास्क में जिला इंतजामिया मुतल्लिका अदालों को मुकम्मल मावनत फराहम कर रही है। मरदमशुमारी टीमों को सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार इंतहाई अलर्ट हैं। जिसको लाहौर का मजीद कहना है कि आला अफसरान मरदमशुमारी टीमों के सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा ले रहे हैं। मरदमशुमारी टीमों की हिफाजत में गफलत और कोताही किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डाकपन, पीरू और थाने की टीमें मरदमशुमारी वाले ब्लॉक में मौसर पेट्रोलिंग भी कर रही है। CCP लाहौर का मजीद कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में फौरी जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूल्स में 1 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का ये मिशन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी हैं। हर टीचर और हर बच्चा अपने हिस्से का पौधा लगाएगा। स्कूलों में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे हैं और छोटे दरख्तों पर बच्चों के नाम की तख्ती भी लगेगी। आतिफ परवेज से तफसीलात जानते हैं। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है स्कूलों में शजरकारी मुहिम का ऐलान किया गया है और इस हवाले से स्कूलों के सरबराहान को खुसूसी हिदायत की गई है। तो पंजाब भर में जो सरकारी स्कूल हैं इनकी तादाद 48,000 है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों और इसके साथ साथ टीचर्स को कहा गया है कि वो दरख्त लगाएं। एक बच्चा एक दरख्त लगाएगा और टीचर्स को भी कहा गया है कि वो भी एक दरख्त लगाएं, इसके साथ साथ पौधा लगाएं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तीसरी जमात के बच्चे हैं वो छोटे दरख्त भी लगा सकते हैं और छोटे दरख्तों पर उनके नाम के बैजेस और तख्तियां लगाई जाएंगी और बच्चे जो हैं इन दरख्तों की हिफाजत भी करेंगे। तो ये 1 करोड़ से ज्यादा दरख्त जो हैं वो मार्च के महीने में लगाने की हदायत की गई हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इस शजरकारी मुहिम से माहौल भी पाक होगा और ख़ास तौर पर जो स्मोक हर साल होती है वो भी ख़त्म करने में मदद हासिल होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब कबीना का 8वां इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब कबीना का 8वां इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिका हुकाम इस इजलास में शरीक होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम इजलास तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब कबीना का आज 8वां इजलास तलब कर लिया है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा और सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी जबकि IG पंजाब और मुतल्लिका हुकाम भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। 8वां इजलास तलब किया गया है और ये इजलास निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तलब किया है। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सेंट्रल पार्क सोसाइटी में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल सज चुका है। फैमिलीज की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई है। खानों के स्टॉल से लुत्फानंदोज हुए हैं। म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। सेंट्रल पार्क सोसाइटी में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का इफ्तिताह चेयरमैन सेंट्रल पार्क सोसाइटी मियां ताहिर जावेद ने किया। सेंट्रल पार्क सोसाइटी के चेयरमैन का कहना था कि सोसाइटी के लोगों को तफरीह के मौके फराहम कर रहे हैं। लोगों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट का मौका दें, तो ये सारा इसको ज़हन में मद्देनज़र रखते हुए आज का ये सारी तकरीब हो रही है। खेलों के मुकाबले करा रहे हैं और बहुत सी एक्टिविटी हैं। लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िकल शो होंगे। जश्न बहारा फेस्टिवल में खाने के स्टॉल्स, झूले, रौनक लगाए हुए हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाए जा रहे हैं। शामिल कर लेते हैं। महंगाई के हवाले से तो महंगाई पर काबू पाना ज़िले इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। 57 मजिस्ट्रेट भी गिरां फरोशी और कम नाप तोल करने वालों को लगाम न डाल सके। मार्केट में सब्जियों, फलों समेत दीगर अशिया 5 से 20% तक महंगी कर दी गई हैं। दही 160 के बजाय 180, दूध 140 रुपए के बजाय 170 रुपए फ़ी किलो तक मिलने लगा है। मज़ीद तफसीलात देंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, एक तरफ तो इन्फ्लेशन रेट दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि शहर में इस वक्त महंगाई के साथ एक बड़ा चैलेंज जो है वो ग्राम फरोशी का है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। और ये एक बड़ा जो क्रैकडाउन है इसके ऊपर एक बड़ा चैलेंज करार दिया जा रहा है। और जो इंतजामिया है इसके लिए महंगाई के साथ मसूई महंगाई का जिन काबू पाना नामुमकिन नजर आ रहा है। और इस वजह से अगर देखा जाए तो शहर में 274 यूनियन कौंसिल है जहाँ पे सिर्फ 57 मजिस्ट्रेट्स हैं और ग्राम फरोशी और कम नाप तोल करने वालों पर भारी नहीं पड़ सक रहे। और ग्राम फरोशी कम नाप होने पर अलबत्ता महंगाई का तनासुब इस वक्त 200% ऊपर चला गया और 5 से 20% तक अशिया महंगी फरोख्त होने लगी हैं जो ग्राम फरोशी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, जिसमें शहरी महंगाई और ग्राम फरोशी की जद में आकर हैजानी कैफियत में मुबतला है। और इस वजह से 57 मजिस्ट्रेट्स ने अभी तक 1,48,000 अशिया ज़रूरिया की दुकानों की चेकिंग नामुमकिन जो है उनके लिए है। और क्योंकि शहर में इस वक्त 1.5 लाख के करीब जो दुकानें हैं उनको चेक करना है और सिर्फ ये 57 मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको चेक करना है। और इसके लिए महकमा दाखिला पंजाब को भिजवाया भी गया है जिला इंतजामिया की तरफ से कि मजिस्ट्रेट्स की तादाद ज्यादा की जाए। आगे रमजान आ रहा है मगर मौजूदा सूरत हाल में जो ग्राम फरोशी है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। एक तरफ तो महंगाई है, ऊपर से ग्राम फरोशी बढ़ती जा रही है। जबकि 3 माह कबल 53 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाकर 72 की गई थी, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर 15 मजिस्ट्रेट की पावर्स वापस ले ली गई। और इसी सूरत हाल में शहर में जहाँ पर तंदूर हैं, इसी तरह 400 से ज्यादा मेगा स्टोर्स हैं और इनकी निगरानी जो है 50% भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। और इस वक्त स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ ग्राम फरोशी का भी तनासुब इस वक्त बढ़ रहा है, जहाँ पे दालें महंगी हैं, बीफ, मटन, दही और इसके साथ साथ दूध, सब्जियां, सुर्ख व सब्ज मसाला जात, इन तमाम कीमतों में होशरुबार इजाफा रोजाना हो रहा है। जिस पर आज की अगर सूरत हाल देखी जाए तो दही की सूरत हाल है, जो सरकारी रेट है वो 160 है, जबकि दही जो है वो 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। और दूध 140 की बजाय 170 रुपए फी किलो महंगे दामों खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकारी पैमाना कामयाब नहीं हो सक रहा है। इंतजामिया की तरफ से छापों, FIR के इंदराज का सिलसिला जारी है, मगर दूसरी तरफ जिले इंतजामिया ने जो मजिस्ट्रेट्स हैं इनकी कारकर्दगी को मापने के लिए स्पेशल ब्रांच की जो है मदद ले लिया। और इनकी कारकर्दगी में ये भी देखा जा रहा है कि इनसे महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा। बहुत शुक्रिया इमरान।
सराफा मार्केट्स में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा है। मजमूई तौर पर सोना 6400 रुपये और चांदी 60 रुपये फी तोला महंगी हुई है। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, सोने की कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल रवां हफ्ते मुल्की सराफा मार्केट में तेजी का रुझान रहा और सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला रहा, लेकिन मजमूई तौर पर सोना जो है वो 6400 रुपए फी तोला तक महंगा किया जा चुका है। चांदी की कीमतों में 60 रुपए तक का इजाफा हुआ है और ये कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमतों में इजाफा और रुपए की कदर में अदम इस्तेहकाम बताया जा रहा है। और इस हवाले से सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आलमी मंडी में रवां हफ्ते कीमतें कम हुई हैं, लेकिन डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से मुकामी सराफा मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई है और जिस वजह से मजमूई तौर पर सोने की कीमतें जो हैं वो 6400 रुपए फी तोला तक बढ़ चुकी हैं। 22 कैरेट खालिद सोना जो है रवां हफ्ते के आगाज पर 1,76,900 रुपए फी तोला था, जिसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद आज 1,82,780 रुपए फी तोला से तजावज कर चुका है। इसी तरह 21 कैरेट सोना जो है 1,68,875 रुपए फी तोला मुकर्रर किया गया था, लेकिन रवां हफ्ते मजमूई तौर पर महंगा करके 1,74,475 रुपए फी तोला कर दिया गया, जबकि चांदी की कीमत में जो है 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है और 2,060 रुपए से कीमत बढ़ाकर 2,120 रुपए फी तोला कर दी गई है। और इस हवाले से जो सराफा मार्केट के जराए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर आइंदा हफ्ते भी डॉलर की कीमतों में इसी तरह तेजी रही तो सोने की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज में बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने सुलेमान शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। अदालत ने शरीक मुलजिम औरंगजेब भट्ट की हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ये रिपोर्ट देखें। स्पेशल सेंट्रल अदालत के ड्यूटी जज ने सलमान शहबाज समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज और दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। केस पर मजीद कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने शरीक मुलजिम औरंगजेब भट्ट की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत ने इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। अदालती कार्रवाई के बाद सलमान शहबाज से डॉलर की ऊंची उड़ान से मुतालिक सवाल किया गया, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर ही चले गए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सदर सैफुल मलूक खोखर कहते हैं, हम नई तंजीम साजी करने जा रहे हैं, हर ब्लॉक के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मजीद कहा, अपनी तंजीम की जानिब से कार्ड को राशन कार्ड का दर्जा देंगे। एक स्टोर कायम करेंगे जहां इस कार्ड पर 25% रियायत पर राशन मिलेगा। मजीद कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मकसद है जो हमारी जमात के अंदर खला रहा, जो बड़े बड़े बैठे रहे मेरे मोहसन, अब वो वक्त नहीं, नई जनरेशन आएगी। ये नहीं कि पुरानों को फारग किया जाएगा, पुराने ओल्ड इज गोल्ड, पुराने हमारे लिए बहुत बड़ा गोल्ड होंगे। आप तो खुद इस पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, अब खुद ही चोर थे, खुद ही चोर चोर कहना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ आपने क्या किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने कोई इसको एटमी कुव्वत बनाया, वो किसने बनाया? शेर ने। आपने कोई इसको मुल्क अंधेरों से निकाला, वो किसने निकाला? शेर ने। आपने मोटरवे बनाए, मोटरवे किसने बनाए? शेर ने। ये मॉडल बाजार किसने बनाए? शेर ने। ओवरहेड ब्रिज किसने बनाए? शेर ने। अंडरपास किसने बनाए? शेर ने। अगर शेर को कामों को निकाल दें, तो शेर के कामों को पाकिस्तान के ढांचे से निकाल दें, पाकिस्तान से निकाल दे, बाकी ढांचा रह जाएगा या इसका प्लस्तर रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसका प्लस्तर भी खुल गया है। अब आपको देखना पड़ेगा, कोई मकबूलियत नहीं, जो बुला उसको गले लगाना चाहिए, कभी किसी से नहीं डरना, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। दूसरी जानिब FIA का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने मुलजिम आसिफ को धर लिया। मुलजिम बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरता था। FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने मुलजिम आसिफ को धर लिया है।
मुलजिम बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरता था। FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का भी आगाज कर दिया है।